Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Tina and in today's video I will tell you the best approach for gynecology, especially for MCA exam, and I'm sharing my notes which I used during my preparation. And to revise the specific gynecology portion, it usually took me around 1.5 hours to read complete gynae. So yes, this is the best approach because these are very concise and beautiful notes, I would say. And so let's just start it. First of all, sorry for delay as I was about to post this video earlier, but due to some issues I wasn't able to do it, so doing it now. So let's get started. First of all, guys, see, in gynecology the best is that your base should be clear, right? Once your base is clear, then you are able to answer or to solve the MCQs easily. So that's the main idea in gynecology, because so many of you have commented and asked me personally also, like, you have difficulty in solving gynecology questions because I don't know the certain issues, but not able to solve MCQs. So the main problem is that only that the basic core concepts are not clear. That's why you are unable to solve gynecology MCQs. So I would say it's better to you know solve MCQ in such a approach so that you are able to understand what it is about and how it's emerging and what's the treatment or what's the diagnosis. So that's the best thing, I think. So let's get started. Gynecology, see guys, I have made these notes concisely, so I have written these small sticky notes, and everything is so concise, so you have to read it carefully. But once you read it carefully, then you understand that yes, the these are very concise. So first of all, see, ovaries are formed from genital ridge. See, these are MCQs. Okay, so you just learn them by heart. Few things which are for MCQ purpose only, you have to mug up like hell so that you won't forget it. So I have written these sticky notes, so you have to just cram these things. Okay, so ovaries are developed from genital ridge, uterus from Mullerian duct. This is important. Okay, then the see, fallopian tubes, uterus, and upper part of vagina is formed from Mullerian duct, and the lower one third of vagina formed from urogenital sinus. ठीक है, which is endoderm in origin. You have to learn this by heart. ठीक है, next, endoderm से क्या बनेगा हमारा कंजेंटल साइनस. इंटरमीडिएट मेजोडर्म से हमारा बनेगा यूरोजेनाइटल साइनस. ठीक है, एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया किससे बनता है? लेटरल प्लेट ऑफ मेजोडर्म. ये दो स्टिकी नोट्स आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है बाय हार्ट, सो दैट यू वोंट फॉरगेट इट, एंड व्हेन यू विल ट्राई टू सॉल्व एमसीक्यू यू विल गेट इट. नेक्स्ट, जेनाइटल रिज. सी गाइस, सिंपल, ओवरी से जेनाइटल रिज बनता है. ठीक है, तो जेनाइटल रिज हमारा 5 वीक पे आएगा, राइट? क्योंकि हमें पता है, प्रीवियसली भी मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है कि लर्न दिस थिंग बाय हार्ट कि 7th वीक पे हमारा टेस्टीज फॉर्म होता है ना. ठीक है, तो देखो, जेनाइटल रिज 5th वीक पे, 6th वीक में इंटरमीडिएट होता है. ठीक है, फिर 7th वीक पे हमारा बनेगा टेस्टिस और 8th पे ओवरीज. सिंपल, इसको लर्न कर लो, स्मॉल चार्ट को, देन यू विल अंडरस्टैंड. एंड एक दिस इज़ ऑल्सो स्मॉल चार्ट रेमनेंट्स का. ठीक है ना, कि मेल्स में ये इस चीज़ का रेमनेंट है, एंड फीमेल्स में ये, और ये होमोलोगस ऑर्गन्स. ठीक है, जिनका सेम एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन होता है. मेल्स में प्रोस्टेट है तो फीमेल्स में स्किनी ग्लैंड्स और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं. कूपर ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड मेल्स में, एंड फीमेल में बार्थोलियन ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, सिमिलरली मेल्स में लिथर्स ग्लैंड है, एंड ग्लैंड्स ऑफ लेबिया मेजोरा फीमेल्स में है. ग्यूबरकुलम मेल्स में, एंड फीमेल्स में माइनोरा राउंड लिगामेंट होता है. ठीक है, अगेन छोटा सा चार्ट है. मेल्स में पीनस और फीमेल्स में क्लियोट्रिस. ठीक है, क्लिटोरिस दोनों जेनाइटल ट्यूबरकल से ओरिजिनेट होता है. ऐसे ही सेम स्क्रोटम एंड लेबिया मेजोरा जेनाइटल स्वेलिंग से, एंड जेनाइटल फोल्ड से हमारा पेनाइल यूरेथ्रा एंड लेबिया माइनोरा. ओके, कमिंग टू दिस स्टिकी नोट्स अगेन. सी,
डक्ट्स जो है मीजोनेफ्रिक और पैरामीजोनेफ्रिक, वो 6 वीक में अपीयर करते हैं, 8th वीक पे डिसअपीयर करते हैं। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, हमारे मुलेरियन इनिबिटिंग फैक्टर जो 7th वीक पे प्रोड्यूस होना स्टार्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, रिग्रेस करते हैं मुलेरियन डक्ट को, ठीक है। और लेडिक सेल्स हमारा टेस्टोस्टेरोन 8th वीक पे प्रोड्यूस करना शुरू करता है, जो प्रमोट करता है वुल्फियन डक्ट को, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हमारा हमें पता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, जो हेल्प करता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया बनाने में। एंड जो वुल्फियन डक्ट है वो क्या करता है, इंटरनल मेल जेनेटिलिया बनाने के काम आता है। तो बेसिकली क्या होगा, सर्टोली सेल्स जैसे ही मुलेरियन इनिबिटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो मुलेरियन डक्ट को इनिबिट करेंगे बनने से, बिकॉज हमें पता है मुलेरियन डक्ट से यूट्रस बनेगा, ठीक है। ऐसे ही लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगे तो वो बेसिकली क्या हुआ, सर्टोली सेल्स लेडिक सेल्स बोथ आर प्रेजेंट इन मेल्स, हमें पता है, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स तो जो मुलेरियन डक्ट है जो फीमेल यूथ्रस बनाएगा उसको रिग्रेस करेगा, एंड लेडिक सेल्स वुल्फियन डक्ट को प्रमोट करेगा कि मेल जेनाइटल्स बनाना है, सिंपल, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन एक्सटर्नल जेनेटिलिया बनाएगा मेल्स का, वुल्फियन डक्ट जो है वो इंटरनल बनाएगा मेल्स का, ठीक है। और स्पेसिफिकली ये सीड निमोनिक है, सेमिनल वेसिकल्स, एपिडाइडिमिस, इजैकुलेटिव डक्ट एंड वास्ट एफरेंसेस, ठीक है। देन वी हैव दिस कंडीशन कंजेंटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। हमें पता है इसमें क्या होता है, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जिसमें 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी। ये इसका पूरा चार्ट है, ठीक है। सिमिलरली इसका स्क्रीनिंग के लिए हम 17 वेट प्रोजेस्टेरोन का टेस्टिंग करते हैं। इफ़ इट इज़ लेस देन 800 देन नथिंग, इफ़ इट इज़ बिटवीन 100 to 800 then we will do diagnostic ACTH stimulation test, okay. And if it is more than 800 then it is already confirmatory. नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट हमें पता है, फ्लूडोकॉर्टिसोन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, ओके। आप ये इसको ही रीड कर लेंगे, आपका ये MCQ ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा, ट्राई टू प्रैक्टिस, ठीक है। ये एक छोटा चार्ट है अगेन, सी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे। अभी हम बेसिक्स पे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम कई बार पढ़ते हैं, हमारा बेस थोड़ा वीक हो जाता है थोड़े टाइम पढ़ने के बाद कई बार, तो इसे इजी वे में याद करना है कि बेसिकली 2 हॉर्मोन्स का मेन रोल है। फर्स्ट हाफ ओव्यूलेशन से पहले वाले में एस्ट्रोजन का, सेकेंड हाफ में ओव्यूलेशन के बाद टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। एक ये MCQ रहता है कि हम डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे काउंट करेंगे, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर जो हमारा फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है ना, उससे हमें बैकवर्ड 17 डेज काउंट कर देना है, देन यू विल गेट योर डे ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। अब ये सिंपल सा 1 लाइन में, डे 1 से 14 तक हमारा फॉलिकुलर फेज है। फॉलिकुलर फेज क्यों, बिकॉज फॉलिकल्स बनेंगे, फॉलिकुलर फेज है। बनने को नए सेल्स को पॉलीफरेशन भी बोलते हैं, तो पॉलीफरेटिव फेज ईजी। 14 से 28 में हमारा लूटियल फेज होता है, ठीक है। इसी एक फिक्स्ड ड्यूरेशन बोलते हैं बिकॉज वो 14 डेज का होता है, ठीक है। और सिक्रेटरी फेज बोलता है क्योंकि इसमें पॉलीफरेशन न्यू सेल्स का बनना बंद हो जाता है, पर अब उनकी सिक्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, पूरा हमारा एंडोमेट्रियम एकदम जूसी और फुल ऑफ टिश्यूज़ का होता है, ठीक है। और ये एक MCQ है कि कॉर्पस लूटियम का मैक्सिमम साइज 22 डे पे होता है, ओके। देन अगेन सी ये चार्ट है कि डे 1 से 14 में एस्ट्रोजन और LH का पूरा हाई पीक होता है, और डे 2 में डे 14 से 28 में हमारा प्रोजेस्टेरोन का पीक आता है, और फिर वो बेस लाइन पर रहता है। तो एस्ट्रोजन का 14 से 24 आवर्स के लिए रहता है, एंड देन उसके बाद आता है LH सर्ज टू 10 से 12 आवर्स के बीच में आता है ओव्यूलेशन से पहले, ठीक है। ऐसे ये कुछ उसके 1 लाइनर्स हैं। ओवेरियन साइकिल इनहिबिटेड बाय, हमें पता है FSH से, ठीक है। साइज ऑफ फॉलिकल बिफोर मैन ओव्यूलेशन कितना होता है, 18 से 20 mm। दीज आर 1 लाइनर्स, ओके। LH सर्च टू अकर एस्ट्रोजन इतना होना चाहिए 200 ग्राम, ठीक है, 448 आवर्स, तब LH सर्च होगा। LH सर्च इतने आवर्स में होता है ओव्यूलेशन से पहले। LH पीक कब होती है, सर्ज हो गया फिर पीक हो गया, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग कॉर्पस लूटियम, ठीक है ना, ये भी आप रीड करेंगे। दीज आर ऑल बेसिकली PYQs, ओके।
ये तीनों का आपको डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए, गार्टनर सिस्ट, सिस्टोसील एंड बार्थोलियन सिस्ट। ठीक है, ये इसके डिफरेंसेस बेसिस पे मैंने इनके लिखे हैं, जस्ट गो थ्रू देम, रीड देम। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा चार्ट है कि कब LH और FSH दोनों कंडीशंस में लो होंगे। ठीक है, ये MCQs में हमारे आ जाएगा, देन यू विल एबल टू सॉल्व, कि आपको ये बस लर्न कर लेना है कि LH और FSH दोनों किस में कम होते हैं ये कंडीशंस में। इसका निमोनिक है PQS। ठीक है, OCPs लेने से शिहान सिंड्रोम में, कालमैन सिंड्रोम में, और हमारा प्रेगनेंसी इन केस ऑफ प्रोलैक्टिन इंक्रीज है, और पिट्यूटरी फेलियर में। ठीक है, सिंपल है। एंड सी शिहान्स कालमान दोनों हमारा पिट्यूटरी एक्सिस में आएंगे, तो दोनों में तब भी LH डिक्रीज़ होगा, OCP से भी डिक्रीज़ होगा, और प्रेगनेंसी और इनमें भी डिक्रीज़ होगा। LH FSH दोनों बढ़ेगा कब? जब हमारा मेनोपॉज आ जाएगा, एस्ट्रोजन कम होगा तो LSH FSH बढ़ेगा, राइट। टर्नर सिंड्रोम में भी ओवरी स्ट्रीक है, नो एस्ट्रोजन नो प्रोजेस्टेरोन, सो LH FSH इंक्रीज रहेगा। और थर्ड कंडीशन जिसमें LH इंक्रीज हो पर FSH बढ़ा हुआ, दैट इज़ PCOD। ठीक है, हम सबको पता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एकदम प्रॉपरली बात करेंगे। सी प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, है ना, मेयोसिस से डाइप्लोटीन स्टेट में। जब हमारा प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनता है तब हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होता है। अब ये देखो, प्राइमरी ओसाइट इनिशियली हार्मोन इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, प्यूबर्टी में जब प्यूबर्टी आती है, मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तब सेकेंडरी oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस फंक्शनल हो जाता है, जो नहीं होता पहले। इजी। ठीक है, अब ये देखेंगे, जो कॉर्टेक्स होता है उसमें ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं फॉलिकल के, और जो मेडुला वाला पोर्शन होता है उसमें थीका सेल्स होते हैं जो LH प्रोड्यूस करते हैं, और ग्रैनुलोसा सेल FSH। नेक्स्ट, FSH ग्रैनुलोसा सेल्स रिलीज करते हैं। FSH क्या करेगा? एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देगा FSH को कि मैं अब रिलीज़ हो रहा हूँ, अब आप डिक्रीज़ हो जाओ, तो FSH को डिक्रीज़ करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, राइट। और एस्ट्रोजन जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो पॉजिटिव फीडबैक देगा ल्यूटियन हार्मोन को, कि LH को, कि अब आप इंक्रीज़ हो जाओ, है ना, LH सर्च कराना है। देन थर्ड इज़, ये और भी क्या करता है, ये पॉलीफ्रेट भी कराएगा एस्ट्रोजन यूथराइन एंडोमेट्रियम को, बिकॉज वो फॉलिकुलर फेज है, तो साथ में एंडोमेट्रियम भी पॉलीफ्रेट करेगा। ठीक है, ऑल्सो एनिमिन B को भी ये फीडबैक देगा। ये मैंने लास्ट टाइम भी एक बार उसमें बताया है कि ये जो मैक्सिमम फॉलिकल्स होते हैं 5th मंथ में होंगे। ठीक है, बर्थ पे 1 मिलियन, प्यूबर्टी पे 4 to 5 lakhs होते हैं। ओके, फिर कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, नेगेटिव फीडबैक देगा LH को। ठीक है, यूथरस को सपोर्ट करता है, एवरीबडी नोज, लूटियल फेज में। और एस्ट्रोजन और इनिबिन A भी ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये पूरा आप चार्ट बाय हार्ट पढ़ेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया मीन्स पेन एट मेंस्ट्रुएशन। और फिर भी अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो जाए तो मैंने इसे इस तरह से याद किया था, डिस्मेनोरिया, दर्द मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब पेनफुल हमारे पास प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी हमें पता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स, जो बेसिकली फर्स्ट टू सेकेंड डेज ऑफ सबको होता है, तो वो सबको पता है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा की वजह से होता है। ठीक है, स्पाज्मोडिक पेन होगा रिलीव होगा रिलीव होगा। ठीक है, इनिशियल मेनार्क यंग एज में होगा, फर्स्ट टू 2-3 डेज रहेगा, कभी भी 48 आवर्स के बाद प्रेजेंट नहीं करेगा, और 48 to 78 आवर्स के बाद। ठीक है, पेनफुल हमें पता है, इसके लिए हम एनसेड ले लेते हैं, विच इज़ मेफेनेमिक एसिड। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का बेसिक मीन ये हुआ, किसी भी पैथोलॉजी की वजह से अगर पेन है तो हमें रूल आउट करना पड़ेगा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, व्हाट द प्रॉब्लम इज़। ठीक है, वो पेन कॉन्टिन्यूस रहेगा, स्पास्मोडिक नहीं होगा, क्योंकि पैथोलॉजिकल पेन है। ठीक है, फिर ये कुछ मेंस्ट्रुएशन के MCQs हैं। ठीक है, नॉर्मल साइकिल, उसका एवरेज लेंथ, नॉर्मल ब्लड लॉस, एवरेज ब्लड लॉस, पूरा। फिर हमारा एटिपिकल ब्लीडिंग आता है, यूथराइन ब्लीडिंग। ठीक है, वी हैव मेनोरेजिया विच मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, और बात करें विच इज़ मोर देन 7 days से ज़्यादा, और 85 ml से ज़्यादा। ओके, सिमिलरली हाइपोमेनोरिया मीन्स ब्लीडिंग हैज़ रिड्यूस्ड, लेस देन 2 days हो रहा है, विच इज़ हाइपोमेनोरिया। ठीक है, विच इज़ कॉमनली सीन इन एशरमैन सिंड्रोम।
ओलिगोमेनोरिया मीन्स लॉन्ग लॉन्ग साइकिल्स आ रहे हैं, ठीक है। पॉलीमेनोरिया बहुत शॉर्ट शॉर्ट साइकिल्स हैं, फटाफट फटाफट हर 15 डेज 20 डेज में ब्लीडिंग हो रहा है, तो शॉर्ट साइकिल्स पॉलीमेनोरिया बार बार हो रहा है। ओलिगोमेनोरिया बहुत लेट लेट हो रहा है, बिग बिग लंबे लंबे साइकिल्स हैं। सिम मेट्रोमेनोरेजिया मीन्स इरेगुलर ब्लीडिंग, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग विच इज़ यूजली सीन इन पॉलिप्स। हाउ आई रिमेंबर दिस, मेट्रोरेजिया मीन्स जैसे मेट्रो ट्रेन है, एक एक स्टेशन पे रुक के जाएगी, है ना। सो सिमिलरली आई लर्न इट लाइक इरेगुलर ब्लीडिंग, एकदम इंटरमिटेंट, बार बार। फिर मैनोमेट्रोरेजिया विच इज़ एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड इंटरमिटेंट एंड और इरेगुलर, ठीक है, विच इज़ यूजली सीन इन फाइब्रॉइड्स। नाउ एक्सेसिव ब्लीडिंग एटिपिकल भी हो सकती है और डिसफंक्शनल भी हो सकती है, ओके। और ये सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगी, हमें एंडोमेट्रियम ट्रांसवेजाइनल स्कैन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, हमें पता है, यंग गर्ल्स, ठीक है। एंडोमेट्रियम थिकनिंग चेक करते हैं हम उससे, इफ़ इट इज़ मोर देन 12 mm, इफ़ द पेशेंट इज़ इन प्री मेनोपोजल स्टेट, ठीक है, और इट इज़ मोर देन 12 mm, हम उसका बायोप्सी करेंगे। इफ़ female is menopausal and if the thickening is more than 5 mm or 4 mm according to these, then we will perform biopsy, and if biopsy यूनिफॉर्म थिकनेस है तो हम एक बार इसकी एस्पिरेशनल बायोप्सी कर लेंगे। ओपीडी प्रोसीजर होता है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है, एन एमसीक्यू पिपली डिवाइस, ठीक है, वेपर एस्पिरेटर के थ्रू। इफ़ इट इज़ लोकलाइज्ड और फोकल, एक जगह पे थिकनिंग है, देन व्हाट वी विल डू, हिस्ट्रोस्कोपी एंड बायोप्सी, ठीक है। ऐसे ही डिसफंक्शन यूथराइन ब्लीडिंग क्या होती है, यंग में, प्यूबर्टी में, ठीक है। डिसफंक्शनल में हम क्या करेंगे, ये एक ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट। मॉडरेट माइल्ड टू मॉडरेट में हम ट्रांसमिक एसिड देते हैं, मेफेनमिक एसिड देते हैं, ओसीपीज देते हैं, ठीक है। सिवियर में वी विल चेक द फर्स्ट ऑफ ऑल वाइटल्स वेदर दे आर स्टेबल अनस्टेबल। इफ इट इज स्टेबल देन वी विल गिव हाई लेवल एस्ट्रोजेंस एंड ओसीपीज। इफ इट इज अनस्टेबल देन वी विल डू डायलेशन एंड क्यूरेटाज एंड आईवी एस्ट्रोजन, ठीक है। सी अब हमारा आया डिसीज कालमान सिंड्रोम, ठीक है, ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है, इजी से अंडरस्टैंड करना। एक्सलेंट रिसेसिव है, म्यूटेशन हो जाती है कैलमैन जीन में, इजी टू लर्न, राइट। अब इसमें क्या होता है, हमारा ये ट्रायल टाइप हमें दिखता है जिसमें हाइपोथैलेमस का फेलियर है, एनोस्मिया है एंड कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। जिसमें अब हाइपोथैलेमस का फेलियर है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही नहीं निकलेगा, तो ना गोनड से कोई हार्मोन निकलने का कंडीशन है, मींस एलएच एफएसएच लो रहेगा, एस्ट्रोजन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, ठीक है। क्यों होता है इसका कॉज आपको पता होना चाहिए। न्यूरोनल माइग्रेशन एब्सेंट रहती है कालमैन सिंड्रोम में, वो कैसे होती है, हियर इट इज रिटन, सी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आर्कियोट न्यूक्लियस से निकलता है पल्सेटाइल मैनर में, एंड इट इज़ अ डेक्टापेप्टाइड, राइट। तो neurons which synthesize the gonadotropin releasing hormone are present in olfactory plus प्लेकोड, ठीक है, वाया ऑल्फैक्टरी नर्व, और इसका जब एब्सेंट हो जाता है माइग्रेशन आर्कियोट न्यूक्लियस से, तो हमें सिंड्रोम मिलता है विच इज़ कालमैन सिंड्रोम बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन कालमैन 1 जीन, ईजी, ठीक है। सी दिस इज related to gonadotropin releasing hormone, so the height of the patient would be normal, ओके। कंप्लेन यूजली रहेगा प्राइमरी एमेनोरिया, डिलेड प्यूबर्टी, इनफर्टिलिटी बिकॉज हॉर्मोन्स आर नॉट देयर, ठीक है। अब व्हाट वुड वी डू, बिकॉज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज नॉट देयर, वी विल provide it from outside either in pulsatile or continuous. See, pulsatile is best because naturally also it is releasing in pulsatile manner, so if we'll give in pulsatile manner the LH-FSH will rise, ठीक है, and we use it in delayed puberty and ovulation and induction. Similarly continuous कब देते हैं, to down regulate the receptors, ठीक है, जिससे LSH FSH डिक्रीज़ हो, एस्ट्रोजन डिक्रीज़ हो, और वो किस में करेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, वो किन कंडीशंस में होगा, हमारा प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में हो गया, एंडोमेट्रियोसिस में हो गया, फाइब्रॉइड्स में हो गया, ठीक है। नाउ हमारे पास है हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, ये भी आपने रीड करना है इन डिटेल, ठीक है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये आता है, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट चार्ट फ्रॉम गायनी फॉर मी स्पेशली बिकॉज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन सबको बहुत बहुत कंफ्यूज करते हैं, मेजॉरिटी को, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द लोगों को। सो हेयर इट इज़, आई वुड से द बेस्ट चार्ट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सी गाइज, ये मैंने
चार्ट बनाया है, टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरोन, रीड देम, सोर्सेज दोनों का, ठीक है, फिर देन कौन किससे बाइंड करता है और उनका व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब एस्ट्रोजन का इफेक्ट ऑन यूथरस क्या होता है, एंडोमेट्रियल पॉलिफ्रेट कराता है, हमें पता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या कराता है, पॉलिफ्रेशन स्टॉप करता है बट सिक्रेटिक एक्शन बढ़ाता है एंडोमेट्रियम का और उसे सपोर्ट करता है, ठीक है। अब अगर एंडोमेट्रियम की बायोप्सी ली जाए तो हमें क्या दिखेगा, फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में जब एस्ट्रोजन डोमिनेंट है तो हमें ग्लैंड्स दिखेंगे, सिंपल सिंपल शॉर्ट शॉर्ट, क्योंकि अभी पॉलीफ्रेट होना स्टार्ट हो रहे हैं। ओव्यूलेशन में बायोप्सी करेंगे तो हमें ग्लैंड्स दिखेंगे बट थोड़े थोड़े कॉइल्ड से, थोड़े थोड़े, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है। और अपीयरेंस कैसा दिखता है उसका, सब न्यूक्लियर वैक्यूल्स हमें दिखेंगे, विच इज़ फर्स्ट साइन ऑफ ओव्यूलेशन ऑन बायोप्सी। अब यही हम सेकेंड हाफ में लेंगे, जब प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंट है तो हमें दिखेगा कॉइल्ड ग्लैंड्स, ठीक है, और उसे हम कॉक्सक्यू अपीयरेंस और सॉटूथ अपीयरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, ईजी टू अंडरस्टैंड है कि हमें पता है प्रोजेस्टेरोन जूसी बना रहा है एकदम, है ना, सिक्रेटरी एक्शन बढ़ा रहा है, तो एकदम किसी कॉइल कॉइल फुल ऑफ जूस है, तो इजी टू लर्न। देन हमारे पास है सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस का क्या उस पर इफेक्ट आएगा एस्ट्रोजन का, थिक वाटरी वो निकलेगा फ्लूइड, ठीक है, हमें पता है स्पिन बार्कलेट इफेक्ट बोलते हैं उसको, एकदम स्टिकियर थिक और वाइट होगा, ठीक है। सेम प्रोजेस्टेरोन में थिक और स्कैंटी होगा, ठीक है, और विच विल बी ब्रेक ऑन स्ट्रेचिंग, टैक बोलते हैं उसको। अंडर माइक्रोस्कोप हमें देखेंगे तो हमें फर्निंग दिखेगी, और फर्निंग एब्सेंट है विच मीन्स प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अपीयर्ड कब तक होगा, 8th डे ऑफ साइकिल, और डिसअपियर प्रोजेस्टेरोन होगा 18 डे ऑफ साइकिल। सिमिलरली अगर वेजाइनल एपिथेलियम देखेंगे एस्ट्रोजन के प्रीडोमिनेंट होने पे तो हमें ऐसे सुपरफिशियल सेल्स दिखेंगे, फर्स्ट हाफ साइकिल में पिंक कलर के होंगे, ठीक है, और पिक्नोटिक न्यूक्लियस होगा। और यही अगर स्लाइड में हॉर्मोन्स दिख रहे हैं, बेजल और पैराबेजल सेल्स हैं, ठीक है, तो वो हमें पोस्टमार्टम और सॉरी पोस्टपार्टम एंड मेनोपॉजल पीरियड में दिखेंगे, ठीक है। ब्लू सेल्स होंगे, बेजोफिलिक स्टेनिंग होगी। सेम प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे तो हमें इंटरमीडिएट सेल्स दिखेंगे जिनका बड़ा न्यूक्लियस होगा और ब्लू कलर्स के सेल्स होंगे। नेक्स्ट ये एमसीक्यूज है, सैंपल फॉर हार्मोनल स्टडी कहाँ से लेना चाहिए, लेटरल वॉल से, अपर थर्ड। सिमिलरली साइटोलॉजिकल स्टडी की बात करें तो हमें सेल्स के लिए पोस्टीरियर वॉल पे लेना चाहिए एमसीक्यू, ठीक है। सेम फैलोपियन ट्यूब पे एस्ट्रोजन से मोटिलिटी बढ़ती है, सिक्रेशन घटता है, एंड वाइस वर्सा प्रोजेस्टेरोन में। फिर ब्रेस्ट में डक्टल डेवलपमेंट होगी और उसमें ग्लैंडुलर डेवलपमेंट। सॉल्ट वाटर रिटेंशन करता है, वो एक्सक्रीशन करता है क्लॉटिंग फैक्टर पे। देन अल्ट्रासाउंड की अपीयरेंस, सी अल्ट्रासाउंड पे पॉलीफ्रेटिव फेस में वाइट लाइन, थिन स्ट्रेट लाइन दिखेगी वाइट सी। ओव्यूलेशन में हमें ट्राइलेमिनर अपीयरेंस दिखता है, और सिक्रेटरी फेस में हमें ऐसे थिक एंडोमेट्रियम दिखता है, पोस्टीरियर एनहांसमेंट पीछे को जाता है, राइट। दीज आर वन लाइनर्स, रीड देम बाय योरसेल्फ। देन इन तीनों का डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, ईजी हो जाता है, हिर्सुटिज्म, विरलाइजेशन और हाइपरट्राइकोसिस का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पीसीओडी, वन ऑफ द हाईलाइट टॉपिक, सी यही रीड करेंगे ना, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर पीसीओडी, ठीक है। बेसिकली पैथोलॉजी पता होना चाहिए, ओवरी में थीका सेल्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एंडोजोन्स, ठीक है, उनका एरोमेटेज हो जाता है तब एस्ट्रोजन बन रहा है, दिस इज़ द रेशियो, नॉर्मल रेशियो इतना होता है, और पीसीओडी के केस में रिवर्स हो जाता है, 2:1 हो जाता है। ओके, टेस्ट डन यूजुअली पीसीओडी के लिए हम 3rd या 2nd डे पे कराते हैं, ठीक है, क्योंकि सी हैव रिटन ऑल्सो बिकॉज LH इज़ प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग, तो LH सर्ज होगा ही नहीं, ठीक है ना। LH सर्ज होने से ही हमें ओव्यूलेशन होगा, ब्लीडिंग होगी लेटर ऑन, तो LH सर्ज है ही नहीं क्योंकि वो शुरू से ही सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। बेसिकली क्या होता है, हॉर्मोन्स के डाउन जाने पे ही हमें ब्लीडिंग आएगी, ठीक है ना, तो वो अगर एक ही अमाउंट में शुरू से है तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ओव्यूलेशन नहीं होगी, इनफर्टिलिटी होगी, ठीक है। क्या होगा, फॉलिकल रप्चर ही नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही है, तो फॉलिकल अंदर ही अंदर रहता है ओवरीज के, और क्या होगा, यूजुअली एक क्लासिकल अपीयरेंस दिखता है हमें, नेकलेस पैटर्न बोलते हैं जिसको, अल्ट्रासाउंड पे फॉलिकल्स अरेंज हो जाते हैं पेरीफेरी में ओवरीज की, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इसमें देखा जाता है, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस और डायबिटीज़ फ्यूचर में जो हमें
देखा जाता है, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें, ये इम्पॉर्टेंट है। रोडलटैम्स क्राइटेरिया, इसमें बोला जाता है आउट ऑफ 3 2 शुड बी प्रेजेंट, देन यू कैन से दिस इज द केस ऑफ पीसीओडी। सी, द एंड्रोजन शुड बी हाई, ठीक है। हिर्सुटिज्म शुड बी देयर और एंड्रोजन लेवल शुड बी हाई, और ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन शुड बी देयर। और थर्ड वन इज ओवरी, इन ओवरी देयर शुड बी एटलीस्ट मोर देन 12 फॉलिकल्स इन ओवरी, और साइज अबाउट 2 to 9 mm, तब हम उसको बोलेंगे कि येस दिस इज अ केस ऑफ पीसीओडी, ठीक है। देन व्हाट इज द मैनेजमेंट? हेयर इट इज़ फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस, वी विल प्रिस्क्राइब मेटफॉर्मिन। इरेगुलर साइकिल्स हैं, वी विल स्टार्ट पेशेंट ऑन ओसीपीज, ठीक है। सिमिलरली फॉर हिस्टोरिटिज्म ऑल्सो वी विल स्टार्ट विद ओसीपीज। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेंगे, लेट्रोजोल हमारा एरोमाटेज इनिबिटर है, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एंड्रोजन्स, सो the drug of choice, first line of drug of choice is letrozole for aromatase inhibitors. Second line drug of choice है हमारा clomiphene citrate which is a sum. Second line में बात करेंगे, then we used to give HMG, laparoscopic ovarian drilling, these are other treatment options, ठीक है। देन वी हैव व्हाट इज़ हेरियन सिंड्रोम, व्हाट इज़ मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम, हमें पता होना चाहिए। मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम में यूजली मैंने इसे ऐसे याद किया जो आजकल हर ओल्ड लेडी को होता है, विच इज़ उसका फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, बीपी बढ़ा रहता है, उसका कोलेस्ट्रॉल्स बढ़े रहते हैं, और उसकी एब्डोमिनल ओबेसिटी, मोस्टली इंडियन फीमेल मेल्स का एब्डोमिनल ओबेसिटी एक्सेसिव में होता है। सो दिस इज़ हाउ आई लर्न इट। फिर हेरियन सिंड्रोम की बात करेंगे। हेरियन सिंड्रोम मीन्स HA stands for hyperandrogenism, IR stands for insulin resistance, and acanthosis nigricans, ठीक है, seen in PCOD. Endometriosis one of the best और I would say important topic, सिंपल है, हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन है, ठीक है। अकर कैसे होता है? एंड्रोमेट्रियम आउटसाइड यूट्रस कहीं पे भी है तो एंड्रोमेट्रियोसिस होगा। मोस्ट कॉमन साइट का ये पूरा वो है, पहले ओवरीज में, फिर सेकेंड हमें पाउच ऑफ डगलास में, देन यूरेथ्रा सेक्रल लिगामेंट, देन ब्रॉड लिगामेंट, देन फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। थ्योरी किसने प्रोवाइड की थी? सैमसन्स थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेड मेंसुरेशन पे बेस्ड है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस लैप्रोस्कोपिक ही होती है, जिसमें हमें गन पाउडर अपीयरेंस और पाउडर बर्न अपीयरेंस दिखता है। यूजली यू वुड हैव सीन फोटोज ऑल्सो, ठीक है। इसका एक ट्रायड होता है जिसमें डिसमेनोरिया विच इज़ पेनफुल मेंसुरेशन होगा, इनफर्टिलिटी तो होगी पेशेंट को, डिस्पैरोनिया भी होगा विच इज़ पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, कंप्लेन होगा पेशेंट का, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है, एंड दिस इज़ फॉर लैप्रोस्कोपिक अपीयरेंसेस, ठीक है। नाउ एडिनोमायोसिस, ये मेरा MCQ था मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे, आई रिमेंबर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियम इज़ प्रेजेंट विद इन द मायोमेट्रियम, सो हमें यूजुअली बल्कि यूथरस मिलेगा, ठीक है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग तो होगा ही और एक्सेसिव पेन भी होगा, एंड दिस इज़ यूजुअली सीन इन मल्टीपैरस लेडीज़, है ना, ओल्ड लेडीज़ में मोर देन 40 years ऑफ एज, ओके। एंड पर वेजाइनम आपको हेल्बन साइन भी मिल सकता है विच इज़ टेंडर्ड यूथरस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इम्पॉर्टेंट है, MRI कराएंगे, देन वी विल सी द एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम प्रेजेंट विद इन मायोमेट्रियम, वो दिखाएगा हमें थिकनेस ऑफ जंक्शनल जोन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम, इफ इट इज़ मोर देन 12 mm, देन वी वुड से दिस इज़ अ केस ऑफ एडिनोमायोसिस, ठीक है। एंड इफ वी विल perform transvaginal scan, we will see a saltpeter appearance of myometrial cyst, ठीक है। Then again question here it is fibroids. See, management का बात करें the best is hysterectomy, because by the age of 40 mostly women's families completed, so we can perform hysterectomy and that is best treatment in case of adenomyosis. Then fibroid, we are very familiar with this, menorrhagia, excessive bleeding is seen, okay. मोस्ट कॉमन पेल्विक ट्यूमर भी बोला जाता है इसको, हिंदी में रसोली बोलते हैं, एंड सिंगल मायोसाइट से ओरिजिनेट होता है। स्मोकिंग इज प्रोटेक्टिव इन फाइब्रॉइड्स, ओके गाइज, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन डिपेंडेंट ट्यूमर है ये, नॉट ओनली एस्ट्रोजन बट बोथ, ओके। क्लासिफिकेशन है एक इंट्रायूथराइन की, एक एक्स्ट्रा यूथराइन की, यू रीड इट, बहुत नीटली बनाया है ये। Then these are one liners, you just learn them by heart, you will understand, ठीक है। This is basic structure of fibroid from within, just read
all of this. Then menopausal one liners and treatments. Puberty, ठीक है, मेल puberty in females and males, how it started. Okay, the average age, first sign growth spurt seen in case of females. ठीक है, first visible sign is thelarch which is breast budding. Okay, so this is also sometime asked the progression, like first in females we will say the thelarch breast budding is seen first, then pubarch, then menarche. Okay, descending. And in case of males there is the progression is ascending, like first of all testicular enlargement, then penile enlargement, then pubarch, and then peak height velocity. Okay, opposite. These are one liners. Again, definition, small beautiful charts, easy to learn. Just while reading, read and learn, you will understand. ठीक है, this is the best chart in whole gynae, I would say, especially for my notes. Okay, see guys, this, if you learn this chart na, you would 100% able to solve at least one MCQ from your exam for sure. Okay, and सबको confusion होता है. See, we have these 5 condition here. First of all, basically बात करेंगे, these are cases of primary amenorrhea. See, we have 2 conditions, right? Primary and secondary amenorrhea, which is absent menstruation. So first case, primary amenorrhea की बात करेंगे. So we have these 5 condition and secondary की separate conditions है. ठीक है, तो प्राइमरी में अगर ब्लीडिंग नहीं हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपरफोरेटेड हाइमन हो सकता है, दैट्स वाई नहीं हो रहा है, सिंपल एक कंडीशन. सेकेंडरी यूथरस ही नहीं है या कम्प्लीटली फॉर्म नहीं है, सेकेंड कंडीशन. थर्ड, हार्मोन सेंसिटिविटी है. फोर्थ, ओवरीज ही स्ट्रीक है तो कोई हार्मोन नहीं होगा, तो इफ़ यूथरस प्रेजेंट भी है देन नो ब्लीडिंग विल देयर. लास्ट इज कालमैन सिंड्रोम, पिट्यूटरी रिलेटेड प्रॉब्लम, सिंपल, राइट. अब सी केस कैसे प्रेजेंट होगा एमसीक्यू में, जो लोग बोलते हैं एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे हैं उनके लिए ये चार्ट बेस्ट है. सही, यंग पेशेंट आया है, कंप्लेन क्या है उसका कि उसकी सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स नॉर्मल है. ठीक है, पर उसको अब्डोमिनल, उसका कंप्लेन होगा कि उसको साइक्लिक पेन हो रहा है अब्डोमिन में एवरी मंथ, पर कोई मेंसेस नहीं है. ठीक है, और जब उसका लोकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें दिखेगा एक ब्लूइश हाइमेन. ठीक है, एंड ऑल अल्ट्रासाउंड हमें यूथरस भी मिलेगा, तो यूथरस भी है, सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स भी है, विच मीन्स हॉर्मोन्स तो है, ओवरीज आर गुड, है ना. देन प्रॉब्लम कहाँ है, यूथरस भी है, ओवरीज भी है, देन द प्रॉब्लम इज़ कि हाइमन ही परफोरेटेड नहीं है, दैट्स वाई ब्लीडिंग नहीं हो पा रही है, सिंपल. तो सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट, हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल, यूथरस है विच मीन्स कोई यूथरस एबनॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि यूथरस मिलेगा हमें इस केस में जिसे हिमेटोमेट्रा कहेंगे. बेसिकली जो ब्लड है वो अंदर ही रह रहा है, बाहर आ ही नहीं पा रहा है, तो हिमेटोमेट्रा. फिर कैरोटाइपिंग उसकी एकदम नॉर्मल होगी 46XX, ओवरीज हैं उसकी क्योंकि उसका सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी गुड है. ठीक है, अब हमें उसे दिखेगा ब्लूइश हाइमन दिखेगा. ठीक है, और ब्लड इन वजाइना को हम बोलते हैं हिमेटोकॉल्पिसिस एंड ब्लड इन यूथरस हिमेटोमेट्रा. अब इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, इनपरफोरेटेड हाइमेन और क्रिप्टोमेनोरिया भी बोलते हैं, विच मीन्स कंसील्ड मेंसेस. ओके, और उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस, एक क्रूशिएट इंसिजन लगाया जाता है हाइमेन पे, द सिंपल. नेक्स्ट केस आएगा, यंग फीमेल आई है. ठीक है, जो बोल रही है उसको प्राइमरी एमेनोरिया, विच मीन्स उसको मेंसेस अभी तक नहीं आया है, पर उसका सेक्शुअल सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल है. ओके, ऑन अल्ट्रासाउंड हमें पता चल रहा है यूथरस एब्सेंट है, यूथरस है ही नहीं, तो हॉर्मोन्स नॉर्मल है, सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल है, तो ओवरी ठीक है. ओके, पर यूथरस एब्सेंट है, उसका कैरोटाइपिंग भी नॉर्मल है. ओके, ओवरी है तो ओव्यूलेशन भी नॉर्मल होगा. तो हम इस केस में यूथरस ही नहीं है, तो यूथरस बनता है हमारा मुलेरियन डक्ट से, हमने पढ़ा था सबसे पहले पेज में. मुलेरियन डक्ट बनाता है मुलेरियन डक्ट बनाता है हमारा यूथरस. ठीक है,
तो यूथरस एब्सेंट होगा तो मुलेरियन एजेनेसिस है, मीन्स एब्सेंट हुआ, मुलेरियन का जेनेसिस ही नहीं हुआ है तो यूथरस नहीं बनेगा। ईजी, यूथरस एब्सेंट होते ही मुलेरियन एजेनेसिस। ठीक है, साइक्लिक पेन है, ब्लूइश हाइमन है सीधा, क्रिप्टोमेनोरिया, इनपरफोरेटेड हाइमन। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा इसका? मैकिंडोर वेजाइनोप्लास्टी करते हैं इसमें। ओके सी गाइस, अब इसमें हमें एक चीज़ और आता है, हमने पढ़ा था कि मुलेरियन डक्ट से क्या बनता है? यूथरस, फेलोपियन ट्यूब एंड अपर पार्ट ऑफ वजाइना। ठीक है, तो इस पेशेंट में हम यूथरस तो फॉर्म नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, तो क्या करते हैं हम? वजाइनोप्लास्टी करते हैं, बिकॉज उसका लोअर 1/3 वजाइना बना होगा बट अपर 1/3 नहीं होगा। तो नॉर्मल सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए हम उसको वजाइनोप्लास्टी करेंगे, इजी। नेक्स्ट बात करेंगे, यंग फीमेल फिर से आई है, प्राइमरी एमेनोरिया की कंप्लेन है, विद ब्रेस्ट उसका प्रॉपर डेवलप्ड है, प्यूबिक हेयर स्कैंटी है और एक्सिलरी में भी स्कैंटी हेयर्स हैं, और उसको कंजेंटली एक इंग्वाइनल हर्निया जैसा स्वेलिंग बचपन से प्रेजेंट है, और यूथरस भी एब्सेंट है अल्ट्रासाउंड पे। यूथरस एब्सेंट हुआ तो हम मुलेरियन एजेनेसिस सोचेंगे, राइट। फिर इंग्वाइनल हर्निया भी है, वो इंग्वाइनल हर्निया जो है वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस इनसाइड द बॉडी, राइट। अब देखो, ब्रेस्ट नॉर्मल, यूथरस एब्सेंट, तो 46XY का कैरियोटाइप होगा क्योंकि टेस्टिस आर प्रेजेंट, राइट। इंग्वाइनल हर्निया प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम बोलते हैं, एंड्रोजन सेंसिटिविटी सिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है, जिसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गोनेट्स को रिमूव करेंगे, वजाइनोप्लास्टी प्रॉपर करेंगे और एस्ट्रोजन देंगे फीमेल को। फिर फीमेल है, प्राइमरी एमेनोरिया के साथ आई है, ब्लीडिंग नहीं है, अब उसके सेक्सुअल सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है, हेयर ग्रोथ नहीं है, ठीक है, और शॉर्ट स्टीचर्ड है, ठीक है, और यूथरस प्रेजेंट है। तो यूथरस प्रेजेंट है तो हमारा मुलेरियन एजेनेसिस का कोई रोल नहीं रहेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो नहीं है, तो अब ओवरीज आर इन्वॉल्व, हार्मोनल इश्यूज भी हैं, तो ये हमारा जाएगा टर्नर सिंड्रोम की तरफ, जिसमें हमें स्ट्रीक ओवरीज दिखेंगी, राइट। स्ट्रीक ओवरीज हो गई, उस वजह से हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आए हैं। शॉर्ट स्टीचर होगा, 46XY इसका कैरियोटाइप होगा, ये इसके फीचर्स हैं और ट्रीटमेंट है। लास्ट बात करेंगे, कालमैन सिंड्रोम क्या है? पिट्यूटरी एक्सिस में ही प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल ही उसका हॉर्मोन्स भी नहीं होगा, उसका ब्लीडिंग भी नहीं होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ भी नहीं होगा, बस हाइट नॉर्मल होगी। पर टर्नर सिंड्रोम में हाइट भी नहीं होगी, हाइट भी शॉर्ट होगी, तो डिफरेंशियल ईजी। प्राइमरी एमेनोरिया के साथ कोई भी फीमेल कंप्लेन करेगी तो आपको एमसीक्यू में बस ये 5 चीज़ सोचनी है कि इनमें से कुछ होगा, उसमें भी आपको 1 वर्ड फटाफट कैच होगा। साइक्लिक पेन कंप्लेन कर देगी, बाकी सब गुड है, तो सीधा आपको इनपरफोरेटेड हाइमन में आना है। अगर उसने बोल दिया यूथरस ही एब्सेंट है, बाकी सब सही है, विच मीन्स मुलेरियन एजेनेसिस है, यूथरस बना नहीं है। इन केस यूथरस भी नहीं है और उसको इंग्वाइनल हर्निया का कंप्लेन हो रहा है जो आपको टेस्टिस की तरफ ले जा रहा है, बाकी हेयर्स हैं बट उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, तो टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम है। अगर प्राइमरी एमेनोरिया है, फिर से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अब ख़राब है, तो हम सोचेंगे या तो टर्नर है या कालमैन सिंड्रोम है, ठीक है ना, दोनों में एब्सेंट होगा। बट कालमैन में हमारा हाइट नॉर्मल होगा बिकॉज सिर्फ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का प्रॉब्लम है, और टर्नर्स में ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसमें हमें बिल्कुल भी जो शॉर्ट हाइट मिलेगी, वेब नेक मिलेगी, सारे फीचर्स दिखेंगे, अदर अबनॉर्मेलिटीज़ भी होंगी, शील चेस्ट, हार्ट डिसीज, सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट करके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इजीली। दिस इज़ फॉर स्पेशली प्राइमरी एमेनोरिया। नेक्स्ट, ये कुछ वन लाइनर्स हैं, रीड देम बाय योरसेल्फ। ये एक छोटा सा चार्ट है प्राइमरी एमेनोरिया के लिए, जो मैं आपको समझाना चाहा कि अगर इन केस कोई भी एमसीक्यू है या आपके पास पेशेंट है, तो वो अगर प्राइमरी एमेनोरिया के कंप्लेन कर रहा है तो आपको इस मैनर में सोचना है, या तो हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम होगा, ठीक है, या पिट्यूटरी में होगा, या उस ओवरीज रिलेटेड होगा, ठीक है, ऐसे। और ये सेकेंडरी में भी सेम होगा। अगर हाइपोथैलेमस होगा तो स्ट्रेस की वजह से उसे पीरियड्स नहीं आए हैं, पिट्यूटरी रिलेटेड होगा तो प्रोलैक्टिनोमा या शीहान सिंड्रोम होगा, ठीक है, विच इज़ यूजली सीन आफ्टर डिलीवरी।
ओवरी होगा तो PCOD होगा, प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम हो सकता है, और यूथरस रिलेटेड होगा तो एशरमैन सिंड्रोम होगा, जो एक्सेसिव डायलिटेशन और क्यूरेटाज के दौरान फाइब्रोसिस हो जाती है यूथरस में, दैट इज कॉल्ड एशरमैन सिंड्रोम। सी अगेन इसका भी एक छोटा सा चार्ट है, दिस इज़ वेरी इजी। ठीक है, अगर प्राइमरी एमेनोरिया की कंप्लेन है पेशेंट को, ब्लीडिंग उसको प्रॉपर आती है प्रोजेस्ट्रॉन देने के बाद, तो दिस इज़ अ केस ऑफ PCOD। ठीक है, पर अगर पेशेंट आए सेकेंडरी एमेनोरिया है, ब्लीडिंग नहीं हुई है कुछ टाइम से, ठीक है, फिर उसको एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का हमने OCP स्टार्ट किया, तब भी उसको ब्लीडिंग नहीं आया, देन इट कुड बी अ केस ऑफ एशरमैन सिंड्रोम। व्हाट हैपेंस इन एशरमैन सिंड्रोम, इंट्रायूथराइन एडेशंस बन जाते हैं और एंडोमेट्रियम बहुत थिन हो जाता है, क्योंकि एक्सेसिव डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज कर दिया था पोस्टपार्टम हेमरेज के टाइम। ठीक है, पेशेंट की कंप्लेन यही होगी कि ब्लीडिंग बहुत कम होती है और बहुत बेसिकली एमेनोरिया है, राइट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम हिस्टोस्कोपी करेंगे एंड दिस इज़ द मैनेजमेंट। ठीक है, बिकॉज एडेशंस बन गए हैं तो हिस्टोस्कोपी के लिए हमें उस समय एडिशुलाइसिस करना पड़ेगा, और यूजली बलून कैथेटर लगा के इंसर्ट करके उसको इन्फ्लेट करेंगे। ठीक है, एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फॉर पॉलीफ्रेशन एंड सिक्रेशन देंगे। फिर से सेकेंडरी कंप्लेन के साथ आया, अब बोल रहा है कि बेबी को लैक्टेट भी नहीं कर पा रही है फीमेल, तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाएगा शीहान सिंड्रोम। क्या होगा, पिट्यूटरी पोस्टपार्टम में हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी का नेक्रोसिस हो जाता है, क्योंकि उसका हमें पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पिट्यूटरी एनलार्ज होता है, राइट, एंड जस्ट आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम हेमरेज में कई बार उसका ब्लड सर्कुलेशन इतना कम होता है कि नेक्रोसिस हो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी का, एंड ये कंडीशन डेवलप होता है बिकॉज हमें पता है एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज ऑल द हार्मोन्स, एंड उसका नेक्रोसिस होगा, हार्मोन लेवल डाउन आएगा, वुमेन विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस मिल्क, एंड दैट वुड बी हर कंप्लेन। नेक्स्ट फिर से सेकेंडरी एमेनोरिया के साथ आया है, अब फीमेल बोल रही है कि उसे गलेक्टोरिया भी है, हेडेक भी है, विजुअल, जहाँ विजुअल हेडेक और गलेक्टोरिया आ जाएगा कि मिल्क आ रहा है ब्रेस्ट से विदाउट इन केस ऑफ एनी डिलीवरी और समथिंग, तो सीधा हम कहाँ पर जाएंगे, प्रोलैक्टिनोमा की तरफ, राइट। नेक्स्ट स्वीयर सिंड्रोम है ये। फिर एनाटॉमी ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, सी इसको आप इजीली रीड करेंगे, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, बहुत एनाटॉमी में हमें बहुत बेकार लगता है जेनिटल ट्रैक्ट, तभी मैंने इसे इतना कंसाइजली बनाया कि मुझे रीड करने में भी प्रॉब्लम ना हो, कि बोर द पॉइंट ना, बोर नहीं होना चाहिए, वो बोर होता है नॉट ये पढ़ने में मुझे, तो मैंने इसे इतना नाइसली बनाया था कि आप इसको आराम से रीड करेंगे एंड आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेम फॉर यूथरस, सिंपल एनाटॉमी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं मैंने किया, इजीली याद हो जाए, समझ आ जाए। यूथरस, इस्थमस, ठीक है, यूथराइन आर्टरी, सर्विक्स का सम वाइन लाइनर्स, और सिंपल सी एनाटॉमी। ठीक है, क्या क्या होता है, जस्ट रीड, यू विल अंडरस्टैंड। बेसिकली इन पेजेस को अगर आप रट लोगे बाय हार्ट, रटना इन सेंस, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि रट्टा इज़ नॉट अ गुड थिंग एक्सेट्रा, सो हेयर रट्टा मीन्स इज कि आप इतनी अच्छे से आप पढ़ लो कि कभी आप भूलने भी लगो तो वो आपके रट्टा की क्वालिटी की वजह से वो फर्स्ट वर्ड के बाद सेकंड वर्ड ऑटोमेटिकली निकल जाए और आपको याद आ जाए, दैट्स व्हाट आई मेंट। ओके, वजाइना का MCQs इसमें से आएगा, बिकॉज वन लाइनर्स हैं, ये दिखने में जितना लिमिटेड है रीड करने में भी उतना लिमिटेड है, सो जस्ट रीड इट। ओके, पूरा एनाटॉमी है, बहुत नाइसली और लेस अमाउंट में बनाया है मैंने कि रीड करने में कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टमी है, टाइप 1 सिंपल मैनर में लिखा है, फिर हमारा टाइप 2, टाइप 3, some wine liners which were extremely important, that's why I wrote them. Okay, the core concept of making these notes were that only, that I can read them as fast as I can. यूथरस प्रोलैप्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गायनी परस्पेक्टिव से। ठीक है, बहुत नाइसली लिखा हुआ है सब कुछ, प्राइमरी मैकेनिकल, प्राइमरी लिगामेंट्स। ठीक है, ये छोटा सा डायग्राम, कलर्ड डायग्राम है, मसल्स, एंड कौन सा रिपेयर किस चीज़ में करेंगे, ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। गाइस, ये सब बहुत कंसाइज कर करके मुझे अभी भी याद है मैंने कितना टाइम दिया था, बट मैं उस समय सिर्फ ये था कि इतना ले जितना टाइम लगेगा, बट एक
इतना कंसाइज नोट्स बन जाए कि अभी भी आगे भी कभी भी फास्ट रिविजन में मुझे हेल्प करे। एंड जो ये अभी भी कर रहा है, सो गिव इट अ लिटिल बिट टाइम, जब रीड कर लोगे यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सेम ये इसके साथ है, ये वॉल्ट प्रोलैप्स है, मैनेजमेंट। ठीक है, जस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है, इजीली लिखा है, जस्ट पढ़ोगे यू वुड अंडरस्टैंड। इन केस फिर भी कभी कुछ समझ ना आए तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ लेना, इंस्टा पे पूछ लेना, और यूट्यूब पे बोल देना, आई विल रीड इट फॉर यू अगेन। है ना, एक शॉर्ट वीडियो में एक शॉर्ट रील अपलोड कर देंगे कि जो आपको समझ ना आए, बिकॉज सारा रीड करने लगी तो मैं हो गया टाइम। ऑल राइट, सो यूरिनरी फिस्टुलास का एक बहुत प्यारा सा चार्ट, हर चीज़ कॉन्सेप्ट में यही था कि एक चार्ट्स बनने चाहिए, और वो मैंने चार्ट ही बनाया है हर चीज़ का। ठीक है, डिफरेंशियल बेसिस पे और चार्ट्स के बेसिस में। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, टीबी की बात हो रही है इधर, ये पूरा टीबी का रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये बहुत प्यारा चार्ट है वजिनाइटिस का, इसको तो अच्छे से पढ़ेंगे। 3 चीज़ हैं कि आपको थ्रू आउट लाइफ याद रहेगा, मेरे हिसाब से इतना अच्छा है। और एक एमसीक्यू तो 85% चांसेस हैं इसमें से एक एमसीक्यूज आने का। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। कॉजेस, ये फीमेल इनफर्टिलिटी का किस समय कौन सा टेस्ट कराएंगे, यू विल रीड इट एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूथरस, जैसे मैंने बताया था कि मुलेरियन डक्ट होते हैं, दीज आर 2 मुलेरियन डक्ट। ठीक है, फिर क्या होता है फॉर्मेशन के टाइम पे, नीचे से सेप्टा बनने लगता है और रिमूव होने लगता है, दिस इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजी। ठीक है, अब देखो, अगर हम, ये भी मैंने एक चार्ट बनाया, लेट मी एक्सप्लेन दिस वन एटलीस्ट। सी, अगर बोथ द मुलेरियन डक्ट्स एब्सेंट हो गए, है ना, तो क्या होगा, बोथ मुलेरियन डक्ट एब्सेंट है तो मुलेरियन एजेनेसिस बोलेंगे इसको, जिसमें हमारा दोनों फैलोपियन ट्यूब एब्सेंट होगा। ठीक है, यूथरस एब्सेंट होगा और अपर पार्ट ऑफ वजाइना एब्सेंट होगा, सिर्फ लोअर वजाइना प्रेजेंट होगा, ओवरीज भी प्रेजेंट होगा, सिंपल। सेकेंड, कई बार क्या होता है कि एक मुलेरियन डक्ट रिग्रेस हो गया और एक बचा है, तो यूनिकॉर्नेट यूथरस बोलते हैं, एक यूथरस, वन साइड ऑफ द यूथरस इज फॉर्म्ड। तो क्या होगा, एक साइड का ही फैलोपियन ट्यूब होगा, हाफ अपर हाफ वजाइना का होगा और हाफ यूथरस होगा। ठीक है, अगर बोथ मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट है बट फ्यूज़ ना हो पाए, जो हमने पढ़ा अभी कि नीचे से फ्यूज़ होना स्टार्ट करते हैं फिर रिमूव होता है, तो दोनों, यूथरस तो पूरा है, दोनों साइड का है, बट बीच में उसके वो सेप्टा फॉर्म नहीं हुआ है, सेपरेट है, फ्यूज़ टू फेल, सॉरी फेल टू फ्यूज़, तो इसे बोलते हैं डाइडेल्फिक यूथरस, यूनिकॉर्नेट सिंगल डाइडेल्फिक, टू, दो यूथरस। ठीक है, तो दो ही उसका फेलोपियन ट्यूब्स होगा, दो उसका यूथरस होगा, दो वजाइना होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, डाइडेल्फिक यूथरस। ठीक है, अब बात करेंगे, अगर बोथ मिलेनियन डक्ट प्रेजेंट तो हैं बट उनका फ्यूजन कंप्लीट नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ और कंप्लीट नहीं हुआ में डिफरेंस हो गया, है ना। कंप्लीट नहीं हुआ मीन्स बनने लगा नीचे से पर फिर नहीं हुआ, बीच में रुक गया, तो इसे बोलते हैं बाई कॉर्नोएट। 2 कॉर्न्स या हॉर्न्स ऐसे याद कर लो निकले हुए हैं वजाइन फेलोपियन ट्यूब्स के, तो बाई कॉर्नेट यूथरस। सिंगल सर्विक्स होगा क्योंकि नीचे से तो फॉर्म हो चुका है, सेप्टा ऊपर से ही नहीं हुआ है बस, तो सिंगल यूथरस, सिंगल सर्विक्स होगा और 2 ही उसका फेलोपियन ट्यूब होगा। ठीक है, वजाइना इसका एक ही होगा पर, और 2 यूथरस होंगे। अब लास्ट में क्या हुआ, बन तो गया वो, बोथ मुलेरियन डक्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूजन भी हो गया, सेप्टा भी बन गया, पर वो सेप्टा रिमूव नहीं हुआ पूरी तरह, तब बोलते हैं सेप्टेट यूथरस। तो यूथरस नॉर्मल एक ही दिखेगा हमें बाहर से, ठीक है, बट अंदर एक सेप्टा प्रेजेंट होगा। फिर लास्ट में है कि सब कुछ प्रॉपर था बट जो फंडस बनना था ऊपर का वो डोम शेप नहीं बना, वो इससे स्ट्रेट रह गया, इसको बोलते हैं हम आर्कुएट न्यूक्लियस। यूथरस इज फ्लैट ऑन टॉप। ठीक है, फिर एक होता है ये डाइस्टिलेस्ट्रॉल, डाइथाइलस्टिलबेस्ट्रॉल के रिलेटेड अबनॉर्मलिटीज़ होते हैं जिसमें टी शेप यूथरस रह जाता है, ये सब थी इसकी अबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, ये पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन चॉइस है, यू जस्ट रीड इट, जब इसको पढ़ो तो समझ, तो इमेजिन करते करते पढ़ना, तो तुम्हें
कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा रेदर मेरे रीड करने से या पूरा बोलने से, ठीक है। ये ओवेरियन ट्यूमर्स में किस में क्या दिखता है, इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये कैंसर्स का है, कैंसर्स सारे आएंगे इसमें इम्पॉर्टेंट, जो गायनी की एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। ये वल्वा की एनाटॉमी है पूरी, और कैंसर्स के चार्ट मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं बिकॉज वो मैं ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। वो मोर देन इनफ चार्ट्स हैं कैंसर रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए इन एमसीक्यू एग्ज़ाम, ठीक है। तो आई वुड से कि उसको ही रट लो तो आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड ये मेंस्ट्रुअल हमारा पूरा कॉन्ट्रासेप्टिव रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। ये साक्षी मैम ने ही पढ़ाया था जिसको मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसको रीड करेंगे। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, क्योंकि पीडीएफ लॉन्ग रहेगा, तो मुझे यूट्यूब में कमेंट कर दें सो दैट मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी वीडियो, सॉरी पीडीएफ, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इफ़ यू आर जनरली वेटिंग फॉर दिस वीडियो, आई वुड से बहुत अच्छा किया है, बट अब इसको पढ़ लो, है ना, और भटकना मत, कंफ्यूज हो जाओगे। ये ट्रस्ट मी एक्सट्रीमली अच्छा नोट्स हैं। मतलब जब आप इतनी मेहनत से कुछ बनाते हो भी इतनी डेडिकेशन से, तो कई बार तो लोगों का शेयर करने का ही मन नहीं करता, बट मुझे ऐसे था कि मैंने इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से इसको बनाया है तो मैं औरों के संग भी शेयर करूँगी ना फास्ट बिकॉज मुझे पता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम कैसा लगता है, आप कैसे ढूंढ रहे होते हो इंटेंसिटी से कि कुछ मिल जाए, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या बहुत इंटेंसिटी से पढ़ें, है ना। तो उस समय को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो गायनी पढ़ चुके हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो अब इन नोट्स को एकदम रट्टा बजाओ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो फिर दबा के। गायनी के ऐसे ही होंगे, ठीक है। ये 3 हमारी प्रॉपर्टीज़ का चार्ट है, बिकॉज मेरे को बहुत गंदा लगता था ये टॉपिक, बट ये बनाने के बाद मुझे ईजी हो गया था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप you found this video helpful.